and it has an attachment which is directing effect. Directing effect means if already group is attached with benzene ring and second group tends to or try to attach with the benzene ring, then first group directs the incoming group, and this is known as the directing effect. Next है side chain reactions. If some type of chain is attached with benzene, for example, is this chain is methyl group और ethyl group और vinyl और propyl group, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो देखना पड़ेगा कि which one is more reactive. फॉर एग्जांपल अगर जो है वो बेंजीन के साथ कोई अल्काइल चेन अटैच है और हम उसकी ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करें तो हमेशा जो है वो साइड चेन ऑक्सीडाइज होगी और बेंजीन रिंग जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं सिंथेसिस को, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये चीजें जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है और इनको हम लोग जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. A molecule is replaced with another group and this is known as substitution. Electrophilic aromatic substitution means those chemical reactions in which electrophiles attack on the benzene ring to get some electrons. And substitution means one group already attached with benzene leaves the benzene ring and nucleophile attached with the benzene. तो हम लोग देखते हैं कि according to structure of benzene, benzene has planar structure in which all carbon atoms are sp2 hybridized and there is bond angle of 120 between these different bonds and one p orbital is present on each or on every carbon atom. These p orbitals bear electrons and these electrons produce a delocalized electronic cloud which is present above and below the plane of the benzene ring and it covers the or surrounds the benzene ring from above and below sides. Whenever some electrophile comes to attach with benzene ring, in this situation electrons of benzene ring attacks on electrophile and sigma complex is produced and it is a reversible process. It is a reversible process in which it is possible that original compounds or original reactants produce again and it is possible that the product produces during this reaction. तो हम लोग देखते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दौरान जो कॉन्टिन्यूअस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है और इसके अलावा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया. नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि बॉन्ड or electrons present in bond between carbon and hydrogen shifts on the benzene ring and as a result original structure of benzene restores. Why this happens? You know that benzene is aromatic and aromaticity gives special stability to benzene ring. To retain its aromaticity, benzene structure retains its structure and do substitution reactions rather than addition reactions. तो ये हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, नेक्स्ट स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना एंड दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट स्टेप में बेस हाइड्रोजन को
अपने साथ एक्सेप्ट कर लेती है और उसके नतीजे में हाइड्रोजन बेस कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, और अब में भी ये वाटर हो या इस किस्म का कोई कंपाउंड हो, और या बेस ही जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन पर। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनमें से एक है नाइट्रेशन, एक है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन सब आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सल्फोनेशन और एडिशन ऑफ सम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, and this is acylation reaction, and next one is known as formylation reaction। CHO ग्रुप को फार्माइल ग्रुप जो है वो कहा जाता है। तो अगर हम लोग बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच करें, माइलेशन जो है वो देते हैं। फॉर ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन भी हम इसे डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव लर्न दिस रिएक्शन इन डिटेल इन योर BSc क्लासेस। तो क्या है, ब्रोमीन और FeBr3 को इस्तेमाल किया जाता है ये रिएक्शन करवाने के लिए, और इस रिएक्शन के नतीजे में ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी और साथ में HBr जो है वो बनेगा। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन HCl एंड क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस। Next is mechanism of bromination or chlorination. There are different steps. In step first, formation of stronger electrophile occurs, and this happens whenever bromine molecule react with FeBr3. It is a reversible process. As a result, an activated complex is produced, or an intermediate stage is produced in which bromine Br2 और FeBr3 इंटरमीडिएट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ बेंजीन रिंग ये अटैक करते हैं इस इंटरमीडिएट पर, और उसके नतीजे में जो है वो उसके नतीजे में ये बॉन्ड ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास जो है FeBr4 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा जो कि एक बेस है। और नेक्स्ट स्टेप में ये है कि बेंजीन ये ब्रोमीन जो अटैच हुआ कार्बन के साथ, इस ये क्योंकि अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया, तो बॉन्ड बनाने के लिए ये ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, और इसके नतीजे में यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर जाता है पूरे के पूरे बेंजीन रिंग पर, और it gets stability due to delocalization of electrons. In the next step, electrons between these two carbons shift between these two carbons, and as a result, this type of situation is created. Positive charge shifts from this uh, ortho carbon to para carbon। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो देखते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ये जो है वो नेक्स्ट आर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। और स्टेप 3 क्या बनेगा, स्टेप 3 है लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स द प्रोडक्ट्स। तो क्या ये प्रोटॉन यहाँ से FeBr4 नेगेटिव के साथ जो है वो अटैच होके यहाँ से ब्रोमीन को अपने साथ जो है वो ले जाएगा, और यहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों को बताना जरूरी है वो ये है कि FeBr3 कैटलिस्ट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, और हम देखते हैं कि रिएक्शन के आखिर में FeBr3 जो है वो दोबारा जनरेट हो गया। आप लोगों से बाज़ औक़ात क्वेश्चन किया जाता है कि क्या कैटलिस्ट खुद से केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है या नहीं।
तो इसका आंसर है यस, catalyst take parts in chemical reaction. However, it eliminate or it excrete at the end of reaction in its original form. ठीक है, जिस केमिकल कंपाउंड की शक्ल में इसने रिएक्शन में हिस्सा स्टार्ट किया था, रिएक्शन के आखिर में भी ये दोबारा अपने उसी केमिकल फॉर्म में जो है वो अपीयर हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। Here is reaction profile, that is energy diagram. Reaction can be divided into two parts. First part is formation of activated complex, and this happens when electrophile attacks on the benzene ring. ठीक है, या हम इसे जरा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। हम लोगों ने अभी पीछे जो फिग देखी, उन फिग्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स किसके, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर इस एरो का हेड इस तरफ से इस तरफ को होता तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो अटैक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से बेंजीन को तरफ जो है वो होता। बहरहाल हम लोग जो है वो दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं, और फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड इट इज अ स्लो स्टेप, देयरफॉर इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट स्टेप में बेस जो है वो बेंजीन से हाइड्रोजन को अपने साथ जो है वो ले जाती है, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is less than that of reactants, and change in energy is equal to minus 10.8 kilocalorie per mole। और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है और इस साइड पर एनर्जी जो है वो शो की गई है। इसके मतलब आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप जो है वो पूछ सकती हैं। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी सर जी ये बेटा समझिए पूछो। कि जो ये लिखा हुआ है वेट पे, सर पहले ये स्टेप स्लो हो रहा है, सर ये रेट लिमिटिंग हाँ ट्रांजिशन स्टेट सर, सर यहाँ स्टेप हाँ स्लो हो हाँ रहा है, तो आगे जाके मतलब सर हाँ, ये ये वाला। 9 पीछे हो रही है, सर यहाँ से समझ आ रही है। अच्छा जी बेटे, इसको इस फिग को थोड़ा सा जहन में रखो, ठीक है, और मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। फार्म और स्टेप टू क्या है? स्टेप टू जो है ये वाला हिस्सा है जिसमें Fe Br3 और Br2 जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के बाद बेंजीन के साथ रिएक्शन शुरू करते हैं। जब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन शुरू करते हैं तो उसके नतीजे में यहाँ पर ये वाली स्टेज जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये जो आपके सामने आ रही है। इस स्टेज पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हमेशा जो है वो रिएक्टेंट्स के मुकाबले में ज्यादा होती है, तो आपके पास ये वाली स्टेज जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिस स्टेज में यहाँ पर बी आर जो है वो अटैच हो चुका है इसके साथ, हाइड्रोजन भी अभी इसके साथ अटैच्ड है, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है, और प्रोड्यूस होने वाला ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे के पूरे रिंग के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज होता है। किस वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस समझे कि ये इस पूरे के ऊपर रिंग के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज हो जाता है, ये कहलाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और दिस स्टेप ऑफ रिएक्शन इज स्लो स्टेप, therefore rate of reaction depends upon this reaction, and according to chemical kinetics
स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। इस वजह से जो है वो यहाँ पे बताया गया कि रेट लिमिटिंग ट्रांजिशन स्टेट है, कि ये रिएक्शन जो है वो इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टेप में जिस वक्त ये रेजोनेंस हो जाएगी तो रेजोनेंस के प्रोसेस की वजह से इसे स्टेबिलिटी मिलेगी और इसकी एनर्जी पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? नेक्स्ट स्टेप में ये है कि यहाँ पर FeBr4 बेंजीन के पास आके यहाँ से हाइड्रोजन अपने साथ जो है वो लेकर जाएगा। ये रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट हो गया। तो इस रिएक्शन के स्टार्ट होने पर एक मर्तबा फिर सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेज जो है वो बनेगी। एंड दिस पार्ट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेप। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम पहले वाले स्टेप को ही कहेंगे कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो ठीक, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो फर्दर पूछ ले। जी सर, वैसे ये क्लियर हो गया जी। सर। जो सेकंड वालेकुम स्टेप है सलाम। 2 वाला, जी सर सर जो सेकंड स्टेप है 2 वाला, जी जी, मतलब ये सर वाला। स्लो सर, ये वाला सर, यहाँ पर कैटलिस्ट डालेंगे तो सर फिर फास्ट करेगा ये अपना रिएक्शन। नहीं नहीं, ये आपने अच्छा किया, आपने ये क्वेश्चन कर लिया। कैटलिस्ट रिएक्शन के शुरू में ही इसके अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? Br2 के साथ, और उसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और रिएक्शन में जिस जी वक्त हिस्सा लेता है तो उस वक्त FeBr3 और Br2 के मिलने की वजह से ये जो इंटरमीडिएट स्टेज प्रोड्यूस हुई है, या जो स्ट्रॉन्गर न्यू इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अब ये कि इस अटैक के नतीजे में ब्रोमीन इस जगह पर अटैच हो गया। ठीक है, और उसके साथ अब पीछे क्या बचा? FeBr3 और ये ब्रोमीन, और जबकि ये वाला ब्रोमीन इस तरफ अटैच हो गया। अब ये ब्रोमीन जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ लेकर नहीं गया, बल्कि इसने बॉन्ड बनाने पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो फैल जाएंगे। इस वजह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जिस वक्त ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबिलिटी हासिल कर चुका होगा, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स दोबारा इस जगह पर आएगा और यहाँ से आके एक हाइड्रोजन लेकर HBr जो है वो बना देगा, और खुद जो है वो अपने ओरिजिनल कंपाउंड की शक्ल में आ जाएगा और किसी और मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए असिस्ट करना जो है वो शुरू कर देगा। ठीक हो गया? जी सर। सर अच्छा सर, वो जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे उसमें सर वो जो न्यूक्लियोफाइल होता था जी वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, मतलब सबस्ट्रेट पे बेंजीन रिंग पे। यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है हाँ जी बॉन्ड जी, क्यों अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे? समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये होता था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता था वो अटैक करता था बेंजीन रिंग पे। इसमें बेंजीन रिंग का बॉन्ड फिर वो इसमें वो बेंजीन, अच्छा वो बेंजीन रिंग पे नहीं करता था, वो सैचुरेटेड कार्बन पर करता था, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जी सर। ठीक है, तो एक तो ये कि ये रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा ये है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता था। ठीक है, जी यहाँ पर जो सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो है उसके नेगेटिव चार्ज होता था, या फिर वो न्यूट्रल होता था, जिसकी एग्जांपल आप OH नेगेटिव की शक्ल में जो है वो ले सकते हैं, या जिसकी एग्जांपल जो है वो आप किसी और न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में जो है वो
ले लें। अभी मुझे कोई और फौरी तौर पर जहन में आया नहीं है। जबकि यहाँ पे सूरत हाल क्या है, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिस चीज ने अटैक करना है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, बल्कि होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। और ये कि आम तौर पर अटैक जो है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अटैक करना जो है वो इजी होता है। तो यहाँ पे इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर रहे हैं। जी सर। ठीक हो गया। जी चलो सर। बेटे अब आगे चलती हैं। नाइट्रोजन, अच्छा बेटे एक मिनट, मुझे अब मैं रोक भी नहीं सकता। इन्हें बता दें कि ना लेक्चर में बिजी हैं, तो ये हैं। अच्छा ये बेटे ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच होगा, और नाइट्रो ग्रुप भी एज सच जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, बल्कि पहले जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन होती है जो कि नाइट्रोनियम आइन है। एंड दिस स्ट्रॉन्ग, सॉरी बेटे न्यूक्लियोफाइल कह दिया, इलेक्ट्रोफाइल कहना था। तो this strong electrophile is produced when H2SO4 reacts with nitric acid and produce nitronium ion। और इसके साथ HSO4 जो है ये बेस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन भी बिल्कुल उसी तरीका कार से है कि पहले इस रिएक्शन के नतीजे में NO2 पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हुआ, नाइट्रोनियम आयन, और स्टेप वन में ये फिर अटैक कर देगा या ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, जिसमें इलेक्ट्रो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे, दरमियान में सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा, और उससे आगे के स्टेप में जो है वो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जो है वो अटैच हो जाएगा। HSO4 नेगेटिव बेस के तौर पर एक्ट करता है, तो ये यहाँ पे मौजूद सिग्मा कॉम्प्लेक्स से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके H2SO4 में तब्दील हो जाता है। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीका कार से। अब यहाँ पर एक और चीज जो है वो आ रही है हमारे पास, वो ये कि नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन, ये है डायरेक्टिंग इफेक्ट, कि अगर ग्रुप पहले से बेंजीन के साथ अटैच है और हम लोग जो है वो नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इस नाइट्रेशन को करवाने के लिए हमें जो है नाइट्रेशन के नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनमें 60% जो है वो आर्थोनाइट्रोटोलोइन, 4% जो है वो मेटा नाइट्रोटोलोइन, और 36% जो है वो हमारे पास पैरा नाइट्रोटोलोइन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो मेटा नाइट्रोटोलोइन बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस हुई, जबकि हम लोग देखते हैं कि इस रिंग में ये पोजीशन जो है, इसमें हम देखते हैं ये पोजीशन जो है वो आर्थो है, ये पोजीशन भी आर्थो है, और उसके नतीजे में ये वाली पोजीशन जो है ये हमारे पास भाई ये मेटा है, और ये जो है वो मेटा है। ये पोजीशन जो है वो हमारे पास पैरा है। हम देखते हैं कि हमारे पास दो जो है वो आर्थो पोजीशंस हैं और एक पैरा पोजीशन है। तो अगर ये दो आर्थो पोजीशंस हैं तो मेटा भी दो ही पोजीशंस हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आर्थो प्रोडक्ट जो है वो 60% प्रोड्यूस होती है, और उसके मुकाबले में मेटा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 4% जो है वो प्रोड्यूस होती है, और पैरा पोजीशन 1 है, लेकिन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट जो है वो 36% के करीब जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the group which is already attached with the benzene have some influence on the incoming electrophile। ठीक है, it is directing to the incoming
electrophile that you have to attach on the ortho position, or you have to attach on the para position, or you have to attach on the meta position. This effect of already attached group is known as directing effect, and it is due to electron releasing or electron withdrawing capability of already attached group with the benzene ring. जैसे सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, ये एक आम सवाल जो है वो किया जाता है. Here is sulfonation. Introduction of SO3H group to benzene is known as a sulfonation, and for this reaction SO3 gas is used. Fuming nitric acid is used for this purpose. Fuming nitric acid, fuming sulfuric acid. What is fuming sulfuric acid? Fuming sulfuric acid is sulfuric acid which have some extra quantity of SO3 present in it. ठीक है. और ये इसलिए किया जाता है कि अगर चूंकि H2SO4 जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है, अगर ये एनवायरनमेंट में से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले तो उसके नतीजे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा. अगर एक्स्ट्रा SO3 मौजूद हो तो ये SO3 जो है ये रिएक्शन करेगी वाटर के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में ये रिएक्शन करेगी H2O के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो है वो H2SO4 प्रोड्यूस होगा. इस तरीका कार से H2SO4 की कंसंट्रेशन जो है वो 100% से कम जो है वो नहीं हो सकेगी. ठीक है. बहरहाल फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद SO3 गैस जो है वो यहाँ पे रिएक्शन में हिस्सा लेती है, और फर्स्ट स्टेप जो है ये रिवर्सिबल स्टेप है. SO3 यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन जो है वो उसको HSO4 ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव कर लेगा. तो ये सिचुएशन, और उसके नतीजे में सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस जो है वो होता है. अब यहाँ पर डीसल्फोनेशन, removal of SO3H group is known as desulfonation. In presence of moisture and heat, reversible reaction occurs, and this leads to production of benzene and H2SO4, and this reaction is known as desulfonation reaction. ठीक है. इस रिएक्शन में भी क्या होगा, इस रिएक्शन में प्रोटॉन जो है एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, and it will tend to get electrons from benzene ring. Benzene attaches with this molecule, and as a result जो ऊपर रिएक्शन हुआ था उसके उलट रिएक्शन जो है वो होगा, और ये बॉन्ड जो है वो इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा. SO3 जो है वो दोबारा हासिल हो गया. अगरचे ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे आप इसको देखें, एक एरो जो है उसको बड़ा शो किया गया है और एक को छोटा शो किया गया है. इट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. नेक्स्ट, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस. आप लोग जानते हो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस एंड फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस. फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस आर of less importance, therefore at here. Introduction of acyl group to benzene ring is known as acylation. What is acyl group? फर्ज कर लें ये हमारे पास जो है वो R है और इसके आगे C डबल बॉन्ड O, और इसके आगे जो है वो हमारे पास कोई भी ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इस ग्रुप को हम लोग जो है वो नाम देते हैं एसाइल ग्रुप. इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं. इस वजह से इस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है, और इसके अंदर
बेस के तौर पर एक जो है वो लीवस एसिड जो है वो यूज किया जाता है। इस पर्पज के लिए आम तौर पर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं AlCl3 को, लेकिन इसके अलावा और भी हैं जिनको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो है वो एसाइलेटेड बेंजीन रिंग और उसके साथ जो है वो HCl प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज्म, तो यहाँ पे इन्होंने ये एसाइल हेलाइड इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है AlCl3 की मौजूदगी में। एंड एसाइल बेंजीन इज प्रोड्यूस्ड और वी से इट इज अ फिनाइल कीटोन because carbonyl carbon is attached with two carbon atoms. This is alkyl group or aryl group, and this is also a carbon, therefore produced product is known as ketone. It is acetophenone, which is produced due to the Friedel-Crafts acylation reaction. Reaction mechanism can be divided into different steps. First step is formation of electrophile. Formation of electrophile in this reaction, Lewis acid react with halide group of acyl halide and produce an intermediate stage, and in this intermediate stage an activated complex is produced. This activated complex has AlCl4 negative charge and acylium ion. ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंटरमीडिएट को, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को। इसमें क्लोरीन जाते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है और पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। Acylation mechanism, second step is attack of benzene electrons on the acylium group और कार्बन एटम। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ। इट इज अ स्लो स्टेप एंड देयरफॉर इट इज rate determining step. It is slow step, therefore it is rate determining step. In the second step, produced base. हम लोग जानते हैं whenever an acid react with the base, it changes into a base which is known as conjugate base. So whenever AlCl3 react or gains Cl negative ion, it convert into AlCl4, which is the conjugate base of AlCl3. And this conjugate base comes here and detach this hydrogen from the benzene ring, and as a result aromaticity of benzene ring restores. नेक्स्ट, इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं जिस तरीके से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रेजोनेंस की वजह से इंटरमीडिएट को स्टेबिलिटी मिलती है, तो यहाँ पर भी एसाइलियम में भी ये स्टेबिलिटी जो है वो मिल रही है। और यहाँ पर एक रिएक्शन जो है वो शो किया गया है जिसमें ये हमारे पास जो है वो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन जो है वो अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। और जिस वक्त हम लोग जो है वो इसको 1 2 3 4 5 ये बनेगा पेंटानोइल क्लोराइड, तो ये जो है वो रिएक्शन करेगा और इसके नतीजे में ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन occurs in presence of TiCl4 and dichloro
मीथेन। इसमें बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो हमें एक ही नजर आ रही है, क्योंकि all carbon atoms present in this molecule have same environment. If hydrogen detaches from here or here or here or here, from all these four positions only single product is possible. तो ये इस वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है वो शो की गई है। क्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए हम लोग जो है वो मैनी मोर लिमिटेशंस, ये तो हम लोग पहले जो है वो जिक्र कर लिया, क्योंकि अल्काइलेशन में बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। इस मकसद के लिए हम लोग अल्काइल हेलाइड को इन प्रेजेंस ऑफ लीवस एसिड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इज एन अल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ये हम लोग जो है वो देखते हैं आर ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया, लेकिन लिमिटेशंस में क्या है कि अगर हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो इसके नतीजे में टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन जो है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जिस वक्त क्लोरीन यहाँ से इसके साथ अटैच होके चला जाएगा तो प्रोड्यूस्ड कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, और उसके नतीजे में प्रोडक्ट जो है वो 90% तक टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन प्रोड्यूस होती है। और ये इसका मैकेनिज्म जो है वो शो किया गया। ये मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम लोगों ने पहले जो है वो डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेशन जनरेटेड फ्रॉम अल्कीन्स, कि हम लोग जो है अल्कीन्स को भी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस के लिए शर्त है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, formation of electrophile. If we can obtain electrophile from some other product, then we can do alkylation reaction with that substance. तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो अल्कीन है, प्रोपीन है, HF की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं तो इस रिएक्शन के नतीजे में सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और इस सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो यहाँ पर हो सकेगा। इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया और ये इंटरमीडिएट जो है वो बाद में फाइनल प्रोडक्ट का बायस बना। ये हमारे पास जो इस रिएक्शन के नतीजे में कॉन्जुगेट बेस फ्लोराइड प्रोड्यूस हुआ था, ये बेंजीन से प्रोटॉन लेगा और इसके नतीजे में ये HF में तब्दील हो जाएगा, ये HF में जो है वो तब्दील हो जाएगा। इसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। चलें जी आगे चलते हैं। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये हमारे पास जो है वो 1 2 3 4, ये हमारे पास जो है वो एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे ख्याल में ये बननी चाहिए थी, क्योंकि क्लोरीन एटम के यहाँ से हटने पर हमारे पास जो कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस होगा उस कार्बोकैटाइन में इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस वजह से इसी कार्बन को बेंजीन रिंग के साथ जो है वो अटैच होना चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल हम लोग देखते हैं कि बहुत थोड़ी मिकदार में ऐसी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसमें बेंजीन जो है वो इस कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो, बल्कि हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलती है उस मेजर प्रोडक्ट में हम लोग जो है वो देखते हैं कि बेंजीन जो है इस
बीटा कार्बन के साथ जो है वो अटैच होती है। मैं इसको बढ़ा कर जो है वो यहां तक ले आऊं, ठीक है। तो ये बीटा कार्बन के साथ जो है वो अटैच होती है। तो ऐसा क्यों है? रीजन ये है कि फर्स्ट स्टेप में जब क्लोराइड AlCl के साथ अटैच होकर AlCl4 बना देता है तो प्रोड्यूस्ड कार्बोकैटाइन जो है ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, और प्राइमरी कार्बोकैटाइंस आर लेस स्टेबल। देयरफॉर वन हाइड्रोजन और हाइड्राइड, not hydrogen but hydride shift from beta carbon to alpha carbon and gives a secondary carbocation which is more stable. And in the second step this carbon is responsible for attachment of group with the benzene ring। तो ये हम लोग जो है वो जो है वो फर्स्ट डिग्री और प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स टिपिकली अंडरगो हाइड्राइड शिफ्ट। मिसाल के तौर पर इसमें है तो यहाँ पर भी हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो होता है। हाइड्राइड ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास अजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसे हाइड्राइड का नाम दिया जाता है। इट मींस दिस हाइड्रोजन शिफ्ट्स फ्रॉम सेकंड कार्बन टू फर्स्ट कार्बन along with its electrons or along with the bonding electrons, ठीक है। और ये कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। साइड चेन रिएक्शंस जैसे ये हमारे पास है, अगर हम लोग जो है वो रिडक्शन करवाएं तो इस रिडक्शन के नतीजे में बेंजीन की रिडक्शन नहीं होती बल्कि साइड चेन पर मौजूद कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन जो है वो हो जाती है। अल्टरनेटिवली यूज जिंक अमलगम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अवॉइड reduction of alkenes and alkynes and it is known as Clemmensen reduction। कि अगर आप लोग जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप लोग जो है वो क्लीमेंजन रिडक्शन भी कर सकते हैं हाइड्रोजन और प्लेडियम चारकोल की जगह पर। नेक्स्ट, स्ट्रेट चेन अल्काइलेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स्ड इन 2 स्टेप्स। एक स्टेप ये माइनर और ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनी। तो हम लोग अगर ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं तो फॉर दिस पर्पस वी विल यूज असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है तो इस वजह से जब ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है तो उसके नतीजे में ये स्टेबल सिचुएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है और रिडक्शन ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर मिथाइल ग्रुप है हम देखते हैं प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट जो है वो बेंजोइक एसिड है। अगर हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल बेंजीन है कि MnO4 से रिडक्शन करवाते हैं तब भी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड है। और अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप अगरचे दो मुख्तलिफ पोजीशंस पर मौजूद हैं तो दोनों ही जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तब्दील हो जाती हैं और बेंजीन जो है ये अपना स्ट्रक्चर बचा लेती है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि साइड चेन चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो हमेशा रिएक्शन के नतीजे में बेंजोइक एसिड ही प्रोड्यूस जो है वो होता है और ये कि कोई साइड चेन जो है वो पूरी की पूरी या उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो नहीं होता। ये कब है? जिस वक्त हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 और वाटर को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग कोई और चीज इस्तेमाल करें तो मे भी हम लोग जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पर बेंजीलिक ब्रोमिनेशन विद N-bromosexin अमाइड, N-bromosexin अमाइड, अगर हम लोग ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है N-bromosexin अमाइड का।
इसका रिएक्शन करवाएं तो इसके नतीजे में इस पोजीशन पर जो है वो ब्रोमिनेशन हो जाती है। ठीक है, ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, जिसकी मदद में हम लोग जो है वो डिफरेंट स्टेप्स की जगह पे सिंगल स्टेप में जो है ये काम कर सके। अब ये देखें कि ये जरा थोड़ी सी जरूरत बनती है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिएक्शन है। वो इस तरीके कार से कि अगर हम लोग सिंपल ब्रोमिनेशन करें तो उस ब्रोमिनेशन के नतीजे में ना सिर्फ इस कार्बन एटम पर ब्रोमिनेशन होगी, बल्कि एंड पर मौजूद इस कार्बन पर भी ब्रोमिनेशन होगी। अगर हम रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक करना रेजियो सिलेक्टिव करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम एन ब्रोमोसक्सेनामाइड को इस्तेमाल करेंगे। और इसमें दो पोजीशंस होने के बावजूद अटैक सिर्फ एक ही पोजीशन पर जो है वो होता है, और ये अटैक आमतौर पर जो है वो अनसेचुरेशन के साथ वाले कार्बन पर हुआ करता है। ये हमारे पास अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनिक एसिड, जिस वक्त इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फोनिक एसिड का बेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट रिएक्शन ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ H3O2, तो फिनोल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और नेक्स्ट नाइट्रोनियम आइन है, इसकी अगर हम लोग रिडक्शन करवा दें तो नाइट्रो की रिडक्शन के नतीजे में जो है वो अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस हुआ करता है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, दो किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर की गई है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा बेटे, हम लोग जो है वो आज यहीं पर रिएक्शन खत्म कर देते हैं, क्योंकि लैपटॉप की चार्जिंग जो है वो खत्म हो गई है। तो हम लोग जो है वो डायरेक्टिंग इफेक्ट से नेक्स्ट जो है वो शुरू करेंगे। इसमें आपके जहन में सर ये जो स्लाइड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, जी सर इसमें अगर मैकेनिज्म के थ्रू इस तरह डायरेक्ट तो समझ नहीं आ रहा, तो मैकेनिज्म के थ्रू समझना हो तो चलें ठीक है, इसके मतलब जो है वो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है वो याद दिला दीजिएगा, इसका मैकेनिज्म जो है वो ढूंढ लेंगे। ठीक है सर। ये बेटे बैटरी बहुत ही थोड़ी सी रह गई है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज जो है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। सर जी सर आपने ऑर्गेनिक की असाइनमेंट दी थी, वो ग्रुप के अंदर सबने जो है वो सबमिट करवा दी है। वो मुझे अब मिल गई है, अब जो है वो मैं नोट कर लूँगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनकी तरफ से जो है वो असाइनमेंट मुझे मिल गई है। वो मैं डाउनलोड कर लूँगा, अटेंडेंस शीट के ऊपर मैं मार्क कर लूँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट्स जमा करवा दी। सर ऑलमोस्ट सबने करवाई है सर। वो तो ऑलमोस्ट है ना बेटे, सब ने तो नहीं करवाई ना। ऑलमोस्ट का मतलब ये है